हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस डेली करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस सेशन के अंदर। दिस इज ऑफ 21st मे एंड व्हाट यू गेट इज ऑसम रीडिंग कंटेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप ये रीडिंग कंटेंट पढ़ते रहेंगे, मेरा मानना है विद इन अ ईयर you will develop a very strong command over your capability with respect to understanding various issues connected to the current affair। दोस्तों, प्रो टैलेंट का क्लैट 2022 का कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये समझिए, ये जो हम आपको करंट अफेयर दे रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस क्लैट 2022 प्रोग्राम। ओके, ग्रेट। So दोस्तों, make sure that you join this. At the same time, if you are targeting CLAT 2021 programs, please come and join as a dropper batch as well as a special batch for starter, which is a special crash course. Let's start to talk about this self-test kit. Okay, this is India का पहला instant COVID-19 का, you can say, do it yourself test kit, which is approved by ICMR, which is developed by My Lab Discovery Solutions. ठीक है, this is one of the very important part. Okay, this is the country's first COVID-19 self-testing kit which is approved. We are not the first country to do that. In USA, they approved it in November 2020. Okay, the name of that was something like Lucira. That was a name for November 2020 approval. We can say do it yourself test kit. It is based on a method of rapid antigen test. Okay, so why this self test kit is needed? How does it help? My dear students, I'm sure you understand that India is going through this second wave of infection, and it is putting lot of pressure on a diagnostic laboratories. The laboratories which are providing this RT-PCR test or rapid antigen test, it is creating lot of hurdle. The biggest hurdle is RT-PCR test, because it is generally taking 3 to 4 days time, and thereby it is delaying hospitalization, it is delaying the treatment. ठीक है, and thereby people generally rely on rapid antigen test. However, the accuracy is not very good. That is pretty okay. Okay, but the self-test kit will be a game changer for this COVID-19 management, because it will cut queues in the laboratory, it will reduce cost, it will dissipate the burden on the existing manpower for sample collections from home and providing quick results. 15 minutes is what this is going to give results in. Yes or no? This is very important. दोस्तों, ये इंडिया का पहला तो नहीं, मतलब वर्ल्ड का पहला तो नहीं है. There was one called Lucira. Okay, Lucira Health was the, you can say, first one, you can say, all-in-one test kit produced in USA, and it was approved in November last year. Europe, South Korea, they have similar kind of, you can say, kits available. So we are not new. Okay, we are not new. So this kit, which is giving results in 15 minutes and it is costing at 250 rupees, is a game changer, because RT-PCR test is available at anything in the range of 400 to 1500 rupees. Yes or no? While you can say a rapid antigen test in a laboratory is available at some around 300 to 900 rupees. Okay, so this is at 250 rupees, which is going to be a game changer. And My Lab, that is a company which says we are going to, you can say, make this production available within a week to the tune of 70 lakh kits. 70 lakh kit एक week में दे देंगे. That is by the next week they are going to bring this. This is huge. This is huge, and they are going to scale up this, you can say, entire plan, ठीक है, to 1 crore kits per week. ठीक है, ऐसा करने का प्लान है. This is huge. ठीक है, और ये मोबाइल ऐप के द्वारा चलेगा. ठीक है, ये मोबाइल ऐप के द्वारा चलेगा. कौन उसको यूज कर सकता है? ठीक है, आइडियली ICMR बोलता है that it has to be used by the people who have symptoms, और you can say जिन्होंने पॉजिटिव पेशेंट के साथ कांटेक्ट किया है
ठीक है, और ये लोग घर पे अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, ठीक है. इफ दे आर पॉजिटिव it will be considered as COVID-19 positive. They are not required RT-PCR test as a confirmatory test. So उसका ये मतलब है that this COVID self, ठीक है, ये जो you can say self kit है, do it yourself test kit है, ठीक है, that is directly connected to ICMR portal. ज़्यादातर सभी टेस्टिंग की जो यू कैन से मेथड्स है वो ICMR के साथ कनेक्टेड है, और इसकी वजह से ये डेटा सीधा उनके पास जाएगा, ठीक है. दे आर गोइंग टू गेट दिस डेटा एंड दिस इज व्हाट काउंटेड एज कोविड पॉजिटिव पीपल. ओके, अगर बंदे का नेगेटिव आया, ठीक है, देन ही मे रिक्वायर टू गो फॉर RT-PCR जस्ट लाइक एनी रैपिड एंटीजन टेस्ट. ये सनो बहुत मज़ेदार है, ठीक है. चलिए ग्रेट. अब ये किट में क्या होगा? द किट हैज़ अ स्टराइल नेजल स्वैब, एक नेजल स्वैब है उसके अंदर. दूसरा है उसके अंदर एक एक्सट्रैक्शन ट्यूब है, ठीक है, एक टेस्टिंग कार्ड है और उसको यू कैन से डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक यू कैन से बायोहैजार्ड बैग है, ठीक है. बायोहैजार्ड बैग इज फॉर डिस्पोजिंग पर्पस. ओके, सबसे पहले कोविशील्ड ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी. ओके, और उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि कोविशील्ड ऐप है वो सीधी ICMR पोर्टल के सर्वर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है. आप से नेजल स्वैब निकालेंगे, ठीक है, उसको अपने 2 से 4 सेंटीमीटर अंदर लेकर जाएंगे, ठीक है, और उसको से रोल करेंगे ताकि प्रॉपर से स्पेसिमेन कलेक्ट हो. उसको स्वर्ल करेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से. उसके बाद उसको निकालकर एक्सट्रैक्शन ट्यूब में उसको मिक्स किया जाएगा. एक्सट्रैक्शन ट्यूब में एक लिक्विड होगा, ठीक है. ओके, सो वो मतलब जो ट्यूब होगी वो ऑब्वियसली टाइटली क्लोज्ड होगी, ठीक है. ओके, सो ये एक्सट्रैक्शन में डालने के बाद 2 drops फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ट्यूब आर स्पिल्ड ओवर ऑन दिस टेस्टिंग कार्ड, ठीक है. एक्सट्रैक्शन ट्यूब में आपने डाल दिया, उसके बाद उसके 2 ड्रॉप आप इस टेस्टिंग कार्ड में डालेंगे, ठीक है. 15 मिनट में उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है. 15 मिनट में रिजल्ट आएगा. अगर बंदा पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो टेस्टिंग कार्ड पे 2 लाइन दिखेगी, और बंदा अगर नेगेटिव होगा तो सिंगल लाइन दिखेगी. ओके, ठीक है. इसमें से ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, ये रिजल्ट आने में, तो ऑब्वियसली वो टेस्ट इनवैलिड हो चुका है, ठीक है, और बायोमेडिकल वेस्ट में फिर ये चीज़ डाल देनी है, ठीक है. तो दिस इज हाउ द आइडिया इज. देयर आर लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ दिस. क्यों भैया? हॉस्पिटल विजिट नहीं करनी है, लैब में जाना नहीं है, टेक्नीशियन को घर पे बुलाना नहीं है, सो जो ट्रांसमिशन हो रहा है लोगों को वो एकदम कम हो जाएगा, ठीक है, और बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है. आज की तारीख में इतना लोड है लैब के ऊपर कि आप और मैं सोच नहीं सकते. ये सनो अब एक तरीके से बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है. उसकी फ्लिप साइड ये है कि उसकी रिलायबिलिटी क्या है. सबसे बड़ा फ्लिप साइड ये है, परेशानी है किस तरीके से सैंपल कलेक्ट किया गया है, ठीक है, वो एक बड़ी परेशानी है. नंबर 1. नंबर 2, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है वो जनरली एक फॉल्स यू कैन से नेगेटिव रिजल्ट देता है. क्या देता है ये? फॉल्स नेगेटिव. ये बड़ी परेशानी की बात है. मतलब एक्चुअली में नेगेटिव नहीं है पर वो बोलता है नेगेटिव है, ठीक है. दैट इज अ प्रॉब्लम. सिमिलरली ये ऐप बेस्ड है, मतलब आदमी को ट्रैक करना इज अ बिगेस्ट ट्रबल, ठीक है. ट्रेसिंग पॉजिटिव पेशेंट इज अ बिगेस्ट कंसर्न, क्योंकि आदमी जब ये परचेज करेगा किट और ऐप पे जाकर एनरोल करेगा तो ऐप पे जाकर वो गलत एड्रेस देगा, गलत नाम देगा, क्या क्या दिक्कत हो सकती है. सो दैट मीन्स इट इज़ डेफिनेटली अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है. हाउएवर मतलब उसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं, तो सोच समझ के उसका यूज़ करना चाहिए. बड़ा अच्छा काम किया, इसको अप्रूवल दे दिया एंड दिस इज़ गोइंग टू बी यूजफुल. देखिए दोस्तों, आपका जो से RT-PCR का जो टेस्ट होता है, ठीक है, RT-PCR का जो टेस्ट होता है, ठीक है, वो वायरल RNA डिटेक्ट करता है, ठीक है. RT-PCR क्या करता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. जो भी से आपके से RNA वायरस का जो भी आपको RNA मिला, ठीक है, उस RNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके DNA बनाया जाता है. फिर DNA बनाने के बाद
पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के द्वारा ये देखा जाता है कि भैया ये यू कैन से वायरस है कि नहीं, बराबर है. दिस इज हाउ द टेस्टिंग इज टेकिंग प्लेस इन RT-PCR. वाइल यू कैन से दिस रैपिड एंटीजन में इट इज डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन. ठीक है भाई, हमारी एंटीबॉडी में कोई स्पेसिफिक एंटीजन है या नहीं वो चेक किया जाता है. ओके दोस्तों, ये वायरल एंटीजन चेक किया जाता है. ठीक है, तो अगर आपका पॉजिटिव होगा तो ये C और T दोनों लाइनें आपकी आएगी, है ना. नहीं तो आपका C लाइन, T लाइन नहीं आएगा. ठीक है, तो आप नेगेटिव हो. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज जनरली हैपनिंग. और एक दूसरा होता है एंटीजन टेस्ट. ठीक है, सॉरी एंटीबॉडी टेस्ट. ओके, एंटीजन टेस्ट यहाँ पे, ये एंटीबॉडी टेस्ट है. चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. बड़ा प्रॉब्लम हो गया दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बड़े बड़े सर्वर्स के अंदर. बड़े बड़े सर्वर्स कौन से हैं? एक है WazirX, दूसरा है CoinDCX. ये बड़े बड़े सर्वर है और ये सर्वर का भत्ता बैठ गया. ठीक है, कल जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स, स्पेशली इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स आए और यहाँ पे उन्होंने भरपूर क्रिप्टो करेंसी परचेज करने का चालू किया. सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये पैदा होता है कि सर ये क्रिप्टो करेंसी जो इंडिया में है वो लीगल है क्या? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इट इज नॉट इलीगल. बराबर है, लीगल है कि नहीं ये पता नहीं है. इट इज नॉट इलीगल, ये पक्का है. कंप्लीट रेगुलेटरी, ठीक है, अनसर्टेनिटी है. सरकार इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रही है. आपको याद होगा, ठीक है, RBI ने एक ऑर्डर निकाला था. ठीक है, जहां पे उन्होंने अपने सभी बैंकों को बोला था कि आपके क्लाइंट क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो उनके अकाउंट के ऊपर आप काम करना बंद कर दीजिए. ठीक है, इसका केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि RBI का ये ऑर्डर गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि कोई लॉ है ही नहीं कि ये मतलब क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है. तो इसके वजह से RBI इस तरीके का ऑर्डर देती है तो ये डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा. ठीक है, चलिए ग्रेट. अब आते हैं कि ये जो मतलब एक्सचेंजेस हैं जिसके द्वारा आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो, बेच सकते हो. ठीक है, वहां पे इतना लोड आया क्यों? इतना ज्यादा लोड आया क्यों? ठीक है, इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इतना ज्यादा भीड़ में आए क्यों? उसके लिए जाना पड़ेगा. ठीक है, आज से करीबन 2 दिन पहले चाइना ने बिटकॉइन के ऊपर क्रैकडाउन किया. ठीक है, डिजिटल करेंसीज वर अंडर प्रेशर फ्रॉम 2 थिंग्स. 1, पेमेंट क्रैकडाउन बाय चाइना एंड द वेरियस ट्वीट्स बाय इलॉन मस्क. ये भाई साहब है, मुझे लगता है कि यही तो बिजनेस चला रहे हैं कि नहीं पूरे क्रिप्टो करेंसी का. ये भाई साहब जब भी ट्वीट करते हैं या तो मार्केट ऊपर उठेगा या मार्केट गिरेगा. ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी. ठीक है, चाइना ने क्या किया था दोस्तों? चाइना ने, ठीक है, ये पूरा रिस्ट्रिक्शन जो था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वो और बढ़ा दिया. ठीक है, उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोला कि भैया आपको क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं करना है. पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ठीक है, विच इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया ये वर्चुअल करेंसीज आर नॉट सपोर्टेड बाय एनी रियल वैल्यू एंड thereby all financial institutions are advised not to accept virtual currency or use as a means for payment and settlement. ठीक है, and these institutions cannot provide exchange services between cryptocurrencies and various foreign currencies और yuan. ये नहीं कर सकते. बराबर है, ऐसा चाइना ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोला, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस गिरने लगी. भरपूर गिरी दोस्तों. ठीक है, करीबन $16,000 जितना वैल्यू डाउन हो गया बिटकॉइन का. तो ये सुनो, और इस गिरती हुई दुनिया में इतना ज्यादा क्रिप्टो करेंसी गिरा. ठीक है, तो इसी पे पैसे कमाने के लिए इंडिया के लोग भागे और तगड़ा ट्रैफिक लगा दिया. और ट्रैफिक की वजह से ये WazirX और CoinDCX का सर्वर का भत्ता बैठ गया. ये सुनो, आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर टू एवरीवन. उसके पहले भी चाइना ने ऐसा कर चुका था.
2017 में चाइना ने इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जो हो रहा था, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ आता है, वैसे एक आईसीओ आने वाला था, वो उन्होंने बैन कर दिया। ठीक है, 2017 में भी उन्होंने ये काम कर चुके थे। ठीक है, तो हालत काफ़ी बर्बाद होने लगी है। पर इंडिया के लोगों को तो मज़ा ही है, एंजॉय करो। ठीक है, कम प्राइस हो रही है, मार्केट में जाओ और लेके आओ सामान। दिस इज व्हाट दे यू कैन से आर फोकसिंग ऑन। यस और नो? आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर। ग्रेट। चलिए अब एक मज़ेदार सा मुद्दा, ये आपको लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन बहुत मदद करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से समझिए, लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्यों मदद करेगा ये देखते हैं। ओके, देखिए पहला पॉइंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 300 फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स को कोविड ड्यूटी में, ठीक है, कोविड की ड्यूटी में लगाने का प्लान किया है। ठीक है, सो ये आर्ग्यूमेंट, ये जो भी भाई साहब है, ठीक है, वही मैडम है नीला भट्टाचार्य जी, ठीक है, शी सेज दैट इट इज ब्रिंगिंग लीगल एंड एथिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताया कि भैया ये जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है ना एमबीबीएस का, ठीक है, उसने अभी तक हॉस्पिटल को अच्छे से देखा नहीं है, उसको बहुत छोटा छोटा काम मिलता है। ठीक है, उसके टीचर बोलते हैं कि भैया जाओ हॉस्पिटल में पेशेंट की फलाना डेटा लेकर आओ। ठीक है, उसके डायग्नोसिस के बारे में उसको पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, सो ये जो स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, उनको आईवी से कैसे स्टार्ट करना, आईवी फ्लूइड कैसे स्टार्ट करना, ठीक है, इंजेक्शन कैसे देना, ठीक है, ओके, ऑक्सीजन पे पेशेंट को कैसे रखना है ना, या उसके लिए फॉर्म कैसे भरना, ये उसको पता नहीं होता है। ठीक है, ओके, नाउ उनको इस तरीके का पावर दे देना कि जाओ आप कोविड ड्यूटी पे जाओ, सो दे आर द वीकेस्ट लिंक। ओके, दे आर द वीकेस्ट लिंक। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सुनो। ठीक है, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। क्यों उनको ये एमबीबीएस के जो बच्चे जो करीबन ऐसे पढ़ाई होने के बाद 1 साल उनको इंटर्नशिप पे लगाया जाता है। इंटर्नशिप पे इसलिए लगाया जाता है ताकि उनको इस तरीके की ट्रेनिंग मिले। उनको बगैर ट्रेनिंग इस तरीके से भेजा जाएगा, प्रॉब्लम है। ठीक है, द डिसीजन व्हेन टू स्टार्ट आईवी, व्हेन टू गिव इंजेक्शन, ठीक है, इट हैज टू बी वेरी फास्ट। ये अनट्रेन्ड लोग हैं, ठीक है, दे विल बिकम ह्यूज लाइबिलिटी। ठीक है, ये एक ह्यूज लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ये लोग अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो पेशेंट का तो ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। ऑल द मोर अगर इनमें से कोई बच्चे को कोरोना लग गया और उसकी डेथ हो गई, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ठीक है, बराबर है भाई। गवर्नमेंट ने उनको बोला है कि आप टेली कम्युनिकेशन मतलब टेलीमेडिसिन करिए। ओके, फोन पे उनसे बात करके दवाइयाँ दीजिए। ओके, ठीक है, डेटा एंट्री करिए इनके बारे में, हॉस्पिटल उसके बारे में डेटा एंट्री करिए। ठीक है दोस्तों, एक बड़ा लीगल इशू क्रिएट होता है कि अगर डॉक्टर, देखिए लीगल इशू क्या है, डॉक्टर मतलब एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोलता है कि टेलीमेडिसिन की कंसल्टेंसी कब आप कर सकते हो, मतलब जब आप डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर कब बनोगे? जब आपने 5 साल का कोर्स कर दिया, ठीक है, ओके, उसके अंदर आपने इंटर्नशिप कर ली और उसके बाद आपको एक ओथ लेकर आप एमबीबीएस डॉक्टर बन के बाहर निकलोगे, है ना, तभी तो आप इस तरीके से लीगली लोगों को गाइड कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो मतलब आप गाइड ही नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, इनको डिग्री मिली नहीं है, मेडिकल काउंसिल के रूल उन्होंने तो मतलब पूरे कंप्लीट करे नहीं है, मतलब डॉक्टर बने नहीं है, फिर भी वो दवाई दे देंगे। क्या मजाक है? इट इज़ लाइक वो सूट्स वाला माइक रॉस, ठीक है ना, आप माइक रॉस बन गए हो, आप लॉज में गए नहीं हो, फिर भी आप लॉयर बन के लोगों को बता रहे हो कि आओ मैं बताता हूँ कि लॉ कैसे काम करता है। बिल्कुल गलत बात है, यस और नो। ठीक है, तो आप लॉयर नहीं बन सकते हो। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये दिक्कत है।
ओके, तो इस तरीके से काम नहीं करने चाहिए। हालांकि ठीक है, टफ टाइम डिमांड्स अगेंस्ट बोल्ड मेजर्स, ये बोल्ड मेजर नहीं है, ठीक है, ये तो बर्बादी की दुनिया है, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि सर इज देयर एनी अदर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल? बिल्कुल, बहुत सारा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है दोस्तों। भारत में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। आज की तारीख में मेडिकल की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वही डॉक्टर कमा रहे हैं, ठीक है, या जो काम कर रहे हैं, जो कोविड की ड्यूटी में, जो एक से बहुत सारे सर्जन्स हैं, बहुत सारे ईएनटी वाले हैं, बहुत सारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, बाकी सब एमबीबीएस तो है, बराबर है, ठीक है। तो ये लोग काफी समय से खाली बैठे, ओपीडी उन्होंने बंद कर दी है, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि भैया रिस्क है या वहां पे लोग आ नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले एमबीबीएस डॉक्टर अवेलेबल है, ठीक है, ओके, एंड देर आर सो मेनी एमबीबीएस स्टूडेंट्स, ठीक है, करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा है जो नीट पीजी के लिए वेट कर रहे हैं, हालांकि उसको उन्होंने डिले कर चुके हैं। तो इन्हीं लोगों को यूज़ करो ना भाई, क्यों स्टूडेंट्स को यूज़ करते हो? बुलाओ इन लोगों को जो अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा है, इनवाइट देम टू वर्क इन द गवर्नमेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स को पुश करना इज नॉट अ गुड आइडिया, क्वालिटी के मुताबिक अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लीगली भी अच्छी बात नहीं है, एथिकली तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए ग्रेट, आगे तो एक मजेदार न्यूज आया, घोलवाड़ सपोटा, सपोटा, ठीक है, आई एम श्योर यू नो सपोटा, कुछ लोग उसको चीकू बोलते हैं, ठीक है, ओके, जो चीकू शेक आप पीते हो, ठीक है, तो दैट इज सपोटा। तो घोलवाड़ सपोटा को महाराष्ट्र की जगह है घोलवाड़ करके, ठीक है, उसको जीआई टैग मिला था। घोलवाड़ विलेज पालघर के पास है, ठीक है, और ये स्पेशल कैल्शियम रिच होता है दोस्तों, ये कैल्शियम रिच सपोटा है, ठीक है, और ये जीआई टैग वाला, जीआई टैग सबको पता होगा दोस्तों, अगर आप पहली बार करंट अफेयर देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन which is known as GI tag is an important, you can say, intellectual property right in the, it's a collective intellectual property right, हाँ, किसी एक बंदे के पास नहीं है, एक एरिया के पास है collective right, ठीक है। तो लोग जो लोकली कोई एरिया में सामान बनाते हैं, ठीक है, उसको जीआई टैग मिल सकता है, और जीआई टैग बनने के बाद, देने के बाद ये सामान अब पहुंचाए यूके, ठीक है। दिस इज वेरी यूजफुल, बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सपोटा कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश बनता है। कर्नाटका सबसे बड़ा उसका ग्रोवर है, ठीक है, फ्रूट सलाद में यूज़ होता है, मिल्क में यूज़ किया जाता है, योगर्ट में, स्मूदीज में डाला जाता है, जैम कब बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है, और ये अब अलग अलग जगह पे एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि यू शुड नो जोग्राफिकल इंडिकेशन, ओके। दोस्तों एक मज़ेदार सा डिस्प्यूट चल रहा है अभी, ठीक है, बहुत मज़ेदार सा डिस्प्यूट है भारत जैसे देश के अंदर, और मुझे लगता है कि इस डिस्प्यूट को जल्द से जल्द सेटल कर देना चाहिए, ठीक है, और जल्द से जल्द सेटल कर देना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ठीक है, जो भारत में सेकेंड वेव जब पीक पे था, लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी थी, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बाहर से मंगवाने पड़े, ठीक है, लोग इंपोर्ट करते थे, ठीक है, लोग इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप जब इंपोर्ट करेंगे तो इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी लगने के बाद जब उसको बेचा जाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर लगेगा अगेन से IGST, ठीक है। व्हाट इज IGST दोस्तों? अब आपको समझ में आना चाहिए, GST is goods and service tax, which is our indirect tax, बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है दोस्तों, which is divided into CGST, which is central GST, SGST, state and intra-state GST, which is known as IGST, और integrated GST बोल सकते हैं इसको, IGST, ओके, इंटीग्रेटेड GST है ये, ओके। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है इसका,
ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, ये इंटीग्रेटेड है, ठीक है, तो दिस हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, चलिए ग्रेट। सो दोस्तों, आपने बाहर से यू कैन से कॉन्सेंट्रेटर मंगवाया, कस्टम ड्यूटी पे करी, फिर जब आप उसको आप अलग अलग जगह पे बेचोगे तो आपको IGST का भी टैक्स पे करना है। सवाल यह पैदा होता है कि कोई बंदे ने अपने दोस्त से, अपना दोस्त उसका USA में रहता है, वहां से पर्सनल यूज के लिए गिफ्ट की तरीके से, ठीक है, एक गिफ्ट की तरीके से ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगवाया, ठीक है, तो उसके ऊपर भी ये IGST लगेगा क्या? 12% का IGST लगता है। तो लोगों ने डिमांड करी कि भाई ये लगना नहीं चाहिए, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये बात पहुंची तो सीधा आर्टिकल नंबर 21 का वास्ता देकर, ठीक है, IGST हटाने के बारे में बात करी गई। दोस्तों, ये भारत में शायद बहुत ही रेयर केसेस में से एक ऐसा केस है जहां पे, ठीक है, टैक्स स्टैट्यूट, टैक्स, ठीक है, और आर्टिकल नंबर यू कैन से 21 मिक्स किया गया है। पहली बार ऐसा है दोस्तों। टैक्स है ना, टैक्स लेना सरकार का अधिकार है, ठीक है, जो भी टैक्स लिवाई करना, टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, ऑब्वियसली वो इक्विटी का पार्ट नहीं है ना, वो कभी भी इक्विटेबल हो नहीं सकता। ये सुनो, हमारे यहाँ पे टैक्सेशन है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, भाई आप ज़्यादा कमाते हो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना है, तो वहाँ पे इक्विटेबल बात, तो फंडामेंटल राइट के बारे में बात आ नहीं सकती। ये सुनो, पर अभी का समय बहुत बुरा है, ये सुनो, ठीक है, भाई एक तरीके की मेडिकल इमरजेंसी है, सरकार ने बोली नहीं है। अगर सरकार बोलती मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार एक ऐसे अपना रूल लगाकर बोल सकती थी कि भैया इसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। अभी मेडिकल इमरजेंसी है नहीं, तो टैक्स लगाना है नहीं लगाना है वो स्टैंडर्ड रूट के मुताबिक चलेगा। तो पहली बार आर्टिकल नंबर 21 इन्वोक किया गया, पहली बार तो नहीं शायद, ठीक है, सॉरी, पहली बार नहीं, ठीक है, रेयर केस में इस तरीके का टैक्स और आर्टिकल नंबर 21 मिक्स किया गया है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ रीट पिटिशन, ठीक है, इट इज वन ऑफ द रेयर रीट पिटिशन, ठीक है, जहां पे नोटिफिकेशन इज इश्यूड अंडर टैक्स स्टैट्यूट एंड इट इज यू कैन से क्वेश्चनड अंडर आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। ये बड़ा मुद्दा है, ठीक है, और इसको हाई कोर्ट कैसे उसका सॉल्यूशन देगी वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा, ठीक है। पिटिशनर ने ये बोला है राइट टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, बहुत ही मजेदार सा आर्ग्यूमेंट है, राइट टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ड्यूरिंग अ मेडिकल इमरजेंसी is a part of article number 21 which is right to life guaranteed under article number 21, ठीक है। So when oxygen concentrator are in short supply and when it is imported it is very expensive and उसके ऊपर 12% का IGST लगाना, it is unfair, it is prejudiced, it is against petitioner during the medical emergency and ongoing crisis of the country, ठीक है, तो इसको निकाल दे, इस तरीके के बारे में बातें करी गई है। चलिए ग्रेट दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड ब्लैक फंगस एज एन एपिडेमिक, ठीक है, म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड इट अंडर एपिडेमिक डिजीज एक्ट। दोस्तों, जब एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के अंदर जब इस तरीके का नोटिफिकेशन होगा, 1897 का ये लॉ है, ठीक है, तो म्यूकर माइकोसिस को एपिडेमिक घोषित करना, ठीक है, उससे क्या होगा, ओके, उससे बहुत महत्वपूर्ण बातें होगी। दैट इज ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दे मस्ट फॉलो प्रॉपर गाइडलाइन। दोस्तों, भाई मलेरिया हुआ है आपको या डेंगू हुआ है, ये सुनो, वो कोई एपिडेमिक डिजीज जैसा नोटिफाइड है नहीं, मतलब उसको किस तरीके, उसका किस तरीके से डायग्नोसिस करना, उसका स्क्रीनिंग कैसे करना, उसकी कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, ठीक है। उसमें भाई आजू बाजू वाला जो डॉक्टर है, ठीक है, वो जो बोलेगा वैसे काम होगा। तो यहाँ पे
गाइडलाइन किसकी मिलेगी? स्क्रीनिंग की। किस तरीके से लोगों को स्क्रीन किया जाएगा, जैसे कोविड-19 में, ठीक है, अगर आपका आरटीपीसीआर का टेस्ट होता है दोस्तों, ठीक है, तो आपके आधार के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और ये पूरा डेटाबेस गवर्नमेंट के पास जाता है। स्क्रीनिंग कैसे होगी, उसका डायग्नोसिस कैसे होगा, ये सुनो, ठीक है, लोग अपनी मन मर्जी से बोल देंगे भैया इसको कोरोना हुआ है, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर टेस्टिंग होगी, रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा, ठीक है, प्रॉपर टेस्ट होगा, उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग डायग्नोसिस कैसे होगा, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है, तो उसके प्रॉपर गाइडलाइन बनाए जाएंगे जो आईसीएमआर बनाएगी और उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बिग चैलेंज इन द कंट्री, म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम लॉट ऑफ स्टेट्स। आपने देखा होगा राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर दिस एज एन एपिडेमिक। गुजरात ने भी कर दिया है अभी, ये सुनो, गुजरात हैज आल्सो अनाउंस्ड साइड बाय साइड, ठीक है। सो दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस इज अ यू कैन से अ फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों, ये फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, उन लोगों को होता है जिनको यू कैन से प्रोलॉन्ग्ड मोर्बिडिटी है, मतलब उन लोगों को यू कैन से डायबिटीज की दिक्कत है या उनकी हेल्थ सिस्टम बिगड़ गई है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड दिए जाते हैं, कोविड पेशेंट को दिए जाते हैं, स्टेरॉइड दिए जाते हैं, उनका शुगर लेवल यू कैन से अनकंट्रोल हो जाता है, उन लोगों के ऊपर ये बड़ा दिक्कत करता है, ठीक है। और दोस्तों, उसका जो ट्रीटमेंट है ना, वो सिंगल ट्रीटमेंट नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। कौन कौन इन्वॉल्व होता है? सर्जन इन्वॉल्व होता है, ईएनटी इन्वॉल्व होता है, न्यूरो सर्जन इन्वॉल्व होता है, डेंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसके लिए दवाई कौन सी यूज होती है? एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है, ये एंटीफंगल मेडिसिन है, ठीक है, और ये लंबे समय तक देनी पड़ती है, ठीक है। ये बड़ी परेशानी की चीज़ है, महंगी है। अगर इधर भी ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है और गलत गलत चीज़ें हो रही है दोस्तों, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो म्यूकरमाइकोसिस के बारे में मैंने बोला, ठीक है, दिस इज एम्फोटेरिसिन बी इज अ ड्रग, एक लंबे समय तक ये देनी पड़ती है, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में देनी पड़ती है, ठीक है। और सेंटर ने बोला स्टेट को भी कि आप भी ऐसा करिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एक बड़ी सी परेशानी की न्यूज़ आई है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, आपको पता होगा कोरोना फैलता कैसे है? कोरोना हवा से फैलता है, ये सुनो, कोरोना हवा से फैलता है। हवा में किस तरीके से फैलता है? ठीक है दोस्तों, हवा में दो तरीके से फैलता है, ठीक है। एक होता है एरोसोल के द्वारा, हवा में, ठीक है, एरोसोल्स छोटे 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 पार्टिकल्स के द्वारा या बड़े बड़े पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है, उनको एरोसोल नहीं बोलते हैं, बराबर है, ठीक है। ये एरोसोल नहीं है, बराबर है, ठीक है। ये आप जो मतलब फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कुछ, ठीक है, आपके मुंह से, बराबर है, बड़े बड़े बूंद निकलते हैं, उस बूंद में, है ना, ये ड्रॉपलेट्स है, ये एरोसोल नहीं है, ये ड्रॉपलेट्स है, बराबर है, ठीक है। सो ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं, ठीक है, और कहाँ तक गिरते हैं? अप टू 2 मीटर। तभी बोला गया कि मतलब 2 मीटर की दूरी रखिए, ये सुनो। पर अब ये बोला गया कि ड्रॉपलेट तो भले 2 मीटर तक ही फैलते हैं, एरोसॉल्स आर ट्रैवलिंग अप टू 10 मीटर्स, 10 मीटर तक दूर जाएगा भाई। देयर बाय द ओनली वे there is a community defense available which is better air circulation, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अच्छा एयर सर्कुलेशन रखो, वेंटिलेशन इज द की, सरकार ने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा जल्दी बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों, अब घरों में जो एसी रखे गए हैं, दे आर द बिग सोर्सेस ऑफ ट्रांसमिटिंग यू कैन से दिस कोरोना। मैं आपको याद होगा, मैंने एक बार बताया था, मुंबई का एक डेटा आपको बताया था। मुंबई में जब फर्स्ट वेव हुआ था तो ज़्यादा यू कैन से कोरोना केसेस आ रहे थे स्लम्स एरिया में, ठीक है, और हाई राइजेस में काफ़ी कम थे, ठीक है। सेकेंड वेव में स्लम्स में बहुत कम आए और हाई राइजेस में काफ़ी ज़्यादा आए। हाई राइजेस में आने का सबसे बड़ा कारण था वहाँ पे वेंटिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता, एसी एसी से लोग चला के बैठे रहते हैं, गर्मी के समय पे भरपूर एसी चलाया लोगों ने और उसी में बर्बादी हो गई। ये सुनो दोस्तों, ये एसी आपका दुश्मन है, ठीक है, इसको अवॉइड करिए दोस्तों, ओके।
चलिए ग्रेट दोस्तों, आज है 21 मई। आज 30 साल कंप्लीट हुए डेथ ऑफ राजीव गांधी को। राजीव गांधी का एसेसिनेशन किया गया था खुलेआम। ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी का एसेसिनेशन करने वाले लोग थे LTTE, दैट इज लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम। ठीक है, टाइगर तमिल एलम, एलम। ठीक है, ध्यान रखना, ये एलम वर्ड मैं वापस यूज करूंगा अभी। ठीक है, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम। ओके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तमिलियन ग्रुप था जो अपने राइट्स के लिए श्रीलंका में लड़ता था। श्रीलंका में अपने राइट्स के लिए लड़ता था। दोस्तों, अभी आपकी एक नया सीरीज आ रहा है, द फैमिली मैन सीजन 2। ये सुनो, तो उस फैमिली मैन सीजन 2 में इसी मुद्दे को उठाने वाले हैं ये लोग, LTTE का मुद्दा। तो LTTE तमिल लोग अपने राइट्स डिमांड कर रहे थे श्रीलंका में। धीरे धीरे दे बिकम रेडिकल एंड they got converted themselves into a big terrorist group led by प्रभाकरन। प्रभाकरन उसका लीडर था और इन्होंने वहां पे अनाप शनाप लेकिन से मतलब लड़ाइयाँ लड़ी। आर्म्स एम्यूनेशन अपने हाथों में रखकर श्रीलंका की आर्मी के सामने लड़ाइयाँ लड़ी। श्रीलंका की आर्मी इसको मैनेज नहीं कर पाई और इसलिए उन्होंने इंडिया से मदद मांगी। इंडिया ने भरपूर मदद किया। जो टाइगर तमिल एलम को पसंद नहीं आया, प्रभाकरन को पसंद नहीं आया, प्रभाकरन ने राजीव गांधी को मारने का प्लान बनाया, खुलेआम एसेसिनेशन करने का प्लान बनाया। ठीक है, और ये प्लान बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, ये प्लान एग्जैक्टली क्या था ये मैं आपको रीडिंग में दूंगा, आप इसको रीड करिएगा, बहुत मजा आएगा। दोस्तों, एज अ लॉ स्टूडेंट यू मस्ट नो हाउ द फैक्ट्स आर बीइंग प्रेजेंटेड टू यू। ठीक है, देयर बाय यू मस्ट नो व्हाट वाज अ प्लान, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड, कौन सा बंदा इन्वॉल्व था, कौन सा बंदा इन्वॉल्व नहीं था, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये मस्ट रीड है आपके लिए, बहुत मजा आएगा। मैं आपके लिए अच्छा सा रीडिंग आइटम आपके लिए रख रहा हूँ, प्लीज उसको पढ़िएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उन्होंने श्री पेरुम्बदूर खुलेआम, ठीक है, 21 मई को इनकी हत्या कर दी। ठीक है, एसेसिनेशन कर दिया। और उस एसेसिनेशन के बाद जो लोग पकड़े गए, ठीक है, उनको जेल में डाला गया, उनके ऊपर केस हुआ और उनको फांसी की सजा सुनाई दी गई। हाउएवर, ये लोग 30 सालों से जेल में हैं, उनको फांसी नहीं दिया गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा और आर्टिकल नंबर 161 के पावर के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 161 के पावर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उनके डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। नए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर आए, MK स्टालिन। ठीक है, उन्होंने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को रिक्वेस्ट किया दैट इन लोगों को राजीव गांधी एसेसिनेशन केस में इन्वॉल्व होने वाले नलिनी, मुरुगन, पेरारीवालन, जया कुमार, रॉबर्ट पयास एंड P रविचंद्रन, इन लोगों को जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाए, ऐसा उनका रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, इनका कहना है कि इन लोगों ने इतने सालों से जो हार्डशिप फेस करी है, जो एगनी फेस करी है, 30 सालों से ये जेल में है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो फांसी की सज़ा का से लटकती हुई तलवार थी, वो उनके लिए बहुत बुरी बात है। उनको जो हार्डशिप झेलनी पड़ी वो बहुत बुरी बात है, उसको निकाल, अभी उनको छोड़ देना चाहिए, उनको रिलीज़ कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 2018 में भी ऐसी डिमांड आई थी और उस समय पे गवर्नर ने डिसाइड कर दिया था कि भैया इनको छोड़ दिया जाए, पर देन इट वाज अ प्रेसिडेंट हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन दिस केस। ठीक है, ऐसे केस में इट इज द प्रेसिडेंट, state government is not the powerful मतलब is not a, you can say, legal authority to do this because the case is involving in the central part. okay, central government के साथ connected है। दोस्तों,
ये बहुत इंपॉर्टेंट यू कैन से जजमेंट आया है, इसको अच्छे से समझिए दोस्तों, बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है दोस्तों। देयर वॉज अ कपल हु वॉज यू कैन से इन अ लिव इन रिलेशनशिप इन हरियाणा, ठीक है, और उन्होंने डिमांड करी हरियाणा पुलिस से कि भैया हमें प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स है हमारे लिव इन रिलेशनशिप को मंजूर नहीं करते हैं, एंड दे आर रेडी टू अटैक ऑन अस, हमारी सुरक्षा कीजिए। दोस्तों, हर सरकार का काम है लोगों की सुरक्षा करना, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज एनश्राइंड से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 21 के मुताबिक, ठीक है। और ये लोगों की लाइफ की सुरक्षा करने का वी कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपने पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, अपने पुलिस के द्वारा, ठीक है, ये लोगों की जान बचा सकते हैं, बराबर है। पुलिस ने इन बातों को लेने से मना कर दिया। पुलिस ने बोला दैट लिव इन रिलेशनशिप्स आर नॉट लीगल, सोसाइटी इसको बुरी तरीके से देखती है, इसी वजह से हम इनको कोई प्रोटेक्शन दे नहीं सकते, ठीक है। हाई कोर्ट ने डांट लगाई, हाई कोर्ट ने बोला एंश्योर दैट नो हार्म कम्स इधर टू द लाइव्स और लिबर्टी ऑफ द पिटिशनर्स। क्या क्या बोला ये समझिए, ठीक है, ओके, ये समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल नंबर 21 के मुताबिक, ठीक है, राइट एंड लिबर्टी इंक्लूड्स राइट of an individual to full development। ध्यान से समझना, right to life involves right to full development, ठीक है, of his or her potential in accordance with his or her choice and wish for such purpose, thereby he is entitled to choose, he can say, the partner, उसकी लाइफ का पार्टनर उसको चॉइस करना है, उसकी चॉइस है भाई। The individual also has a right to formalize their relationship with their partner। उनको अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है, उनको अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप फॉर्मलाइज करनी है उसका भी अधिकार है। ये रिलेशनशिप फॉर्मलाइज कैसे हो सकती है? या तो मैरिज के द्वारा हो सकती है, ये सुनो, जो फॉर्मल मेथड हो गया, या नॉन मेथड विच इज कॉल्ड लिव इन रिलेशनशिप, ये भी चलेगा। द कंसेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप हमारी सोसाइटी में वेस्टर्न कंट्री से आया है और लोग एक्सेप्ट करने लगे। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अलावा लोग गांव-गांव में भी ये बातें एक्सेप्ट करने लगे हैं, एंड देयर बाय ये इंडिविजुअल अपने फुल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, अपने फुल डेवलपमेंट को अटेन करने के लिए अपने पार्टनर के साथ किस तरीके का फॉर्मल रिलेशन रखे, मैरिज रखे या लिव इन रिलेशन रखे, ये उनके कंप्लीट फुलफिलमेंट के लिए ये नेसेसरी है। इतने सालों में एजुकेशन बढ़ा और एजुकेशन बढ़ने की वजह से ये आइडिया सबके पास पहुंचा, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। जब ये पिटिशनर हाई कोर्ट के पास पहुंचे कि जब उनके फैमिली मेंबर उनको थ्रेटन कर रहे थे फिजिकल हार्म करने के लिए, तब ये पहुंचे, ठीक है, और स्टेट ने, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हाई कोर्ट ने बोला इन अ लॉ सच काइंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, इज नॉट एन ऑफेंस, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, it does not amount to commission of any offense, and thereby in our view such persons are entitled for equal protection of law, ठीक है, okay, this is very important। life and liberty of every individual is very precious, it must be protected, ठीक है, irrespective of individual का व्यू क्या है, आपके स्टेट का व्यू क्या है, we are not bothered, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ग्रांट प्रोटेक्शन टू कपल्स हु हैव मैरिड अगेंस्ट द विशेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, ठीक है, दे सीक द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो ऐसी ही आइडेंटिकल सिचुएशन इज हैपनिंग व्हेन द कपल इज इन अ लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज लिव इन रिलेशनशिप इज यूनिवर्सली नॉट एक्सेप्टेबल, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं,
पर भैया अगर वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है या नहीं है, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। ठीक है भाई, आपको ये ध्यान रखना है कि लोगों को अगर ये लिव इन रिलेशनशिप के द्वारा ठीक से ये काम करते हैं, ठीक है, तो उनके कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए उनको अगर लोगों के साथ रहना है तो ये उनका फ्रीडम है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ के द्वारा उनसे ये चीज़ें छीनी नहीं जा सकती। बहुत ही मज़ेदार से मुद्दे आए दोस्तों। आर्टिकल नंबर 21 को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया। आगे बढ़ते दोस्तों, श्रीलंका पार्लियामेंट पासिस अ बिल विच इज़ चाइना के द्वारा इन्वेस्ट किया गया पोर्ट सिटी। ठीक है, तो ये बहुत मज़ेदार सा मुद्दा है, हमने बात करी थी दोस्तों। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बहुत सारे एक ऐसे लॉज आप तोड़ रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर इन्होंने इसको पास कर दिया। दोस्तों ध्यान से समझिए उन्होंने क्या पास किया, कैसे सिचुएशन क्रिएट हुई और कहाँ पे बड़ा मुद्दा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का कोलंबो पोर्ट सिटी बनने वाला है। कोलंबो पोर्ट सिटी, ठीक है, 2014 में लॉन्च किया गया था जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उन्होंने जब वीकेंड से विजिट किया था श्रीलंका को। ओके, कोलंबो पोर्ट सिटी डेवलप करने के बारे में बात है। श्रीलंकन पार्लियामेंट ने आउट ऑफ 225 मेंबर में से 149 मेंबर ने इसको अप्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये एक मज़ेदार सा अप्रूवल आ चुका है। ठीक है, ओके, लीगल फ्रेमवर्क तो आ गया। ठीक है, और ये एक तरीके का टैक्स हेवन भी बनेगा, यहाँ पे टैक्सेशन लगेगी नहीं। ओके, और चाइना यहाँ पे एफडीआई लेकर आएगा अप टू एक से 15 बिलियन डॉलर तक का एक से एफडीआई आने की संभावना है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो अपोजिशन में थे इन्होंने बहुत ही क्रिटिकल वे में उन्होंने बातें करी। जो लोग अपोजिशन में थे, अपोजिशन ने ये बोला दैट यू आर डेवलपिंग वन चाइनीज एनक्लेव, मतलब आप चाइना का एरिया ही बना रहे हो। ये सनो, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये सनो। ठीक है, और आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर डेवलपिंग एक ऐसे मतलब वन कंट्री बट द लॉ विच यू आर डेवलपिंग इज अ चाइनीज लॉ, मतलब आप श्रीलंका के लॉ नहीं लगा रहे हो, गलत है। ठीक है, उन्होंने एक और एग्जांपल दिया। ठीक है, कोल्ड वॉर एरा के दौरान, ठीक है, जब श्रीलंका यूएसए की तरफ बहुत ज़्यादा ढलने लगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूएसए की तरफ ढलने लगा, तो जो एक से श्रीलंका के अंदर जो दिक्कतें हुई, ठीक है, जो सिंहाली लोग एंड तमिल्स के बीच में लड़ाइयाँ हुई, तो उसमें तमिलियंस को सपोर्ट करने के लिए इंडिया खड़ा हो गया, और जिसकी वजह से वहाँ पे एक सिविल वॉर चालू हुई विद द हेल्प ऑफ एलटीटीई। ये सुनो, तो अब जब श्रीलंका चाइना सेंट्रिक बन रहा है, सो देयर इज डेफिनेटली अ बिग जियोपॉलिटिकल डिसऑर्डर होने की संभावना है। इस तरीके का आर्ग्यूमेंट दिया गया, जियोपॉलिटिकल डिसऑर्डर बोला गया। ठीक है भैया, ये जो श्रीलंकन से गवर्नमेंट है या श्रीलंका एज ए नेशन है, उन्होंने है ना तमिलियंस से बहुत ज़्यादा दिक्कतें से झेली थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेली थी। ठीक है, उन्होंने बोला दैट से कि ये अब है ना चाइना नहीं रहेगा, मतलब सॉरी ये श्रीलंका नहीं रहेगा, इसको नाम दिया जाएगा एक से चिलम। क्या नाम दिया जाएगा? चिलम। व्हाट इज चिलम? चिलम के अंदर वर्ड है एलम। ओके ओके, एलम इज यू कैन से टाइगर तमिल एलम वाला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, ओके, एलम इज अ नेम फॉर श्रीलंका, तमिल नेम फॉर श्रीलंका। ठीक है, सो नाउ चाइना एंड यू कैन से एलम इज नोन एज चिलम। चिलम इज नाउ नोन टू बी श्रीलंका। श्रीलंका का नया नाम वैसा बोल रहा है। ठीक है, कि आप चिलम बना रहे हो। ठीक है, वैसा तो लोग उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, पर हालांकि ये पास हो चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट होगी। ठीक है, विल हैव टू वेट एंड वॉच
हाउ थिंग्स आर शेपिंग अप. ओके, चलिए, ग्रेट. आई होप यू लाइक दिस सेशन दोस्तों. मज़ा आया होगा आपको, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जानने को मिली होगी. सो क्लैट 22 का ये मज़ेदार सा मॉड्यूल आपको मदद आया होगा. अगर आपको पसंद हुआ होगा दोस्तों तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड डू नॉट मिस आउट टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट कोर्स. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.